آج وہی ارشاد نسرین جن کی چند روز قبل سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ویڈیو وائرل ہوئی تھی، پولیس کی حفاظت میں دیپال پور کچہری میں میجسٹریٹ کے سامنے پہنچی۔ 23 اگست کو منظر عام پر آنے والی ویڈیو کے مطابق ایڈوکیٹ ارشاد نسرین صدمے کی حالت میں میلسی کے علاقے میں ملی، جبکہ ان کے منہ اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ دیپال پور بار سے تعلق رکھنے والی ایڈوکیٹ ارشاد نسرین کے پولیس کو ابتدائی طور پر قلم بند کروائے گئے بیان کے مطابق ان کو 4 افراد نے ایک نامعلوم مقام پر نشہ آور مواد دے کر ان کو نہ صرف خوفناک جنسی تشدد اور زیادتی کا نشانہ بنایا بلکہ ان پر ایک زہریلا سانپ بھی چھوڑ دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ارشاد نسرین کے مطابق جب وہ 15 اگست کی صبح 9 بجے ایڈوکیٹ میاں اسلم شاد کے چیمبر نمبر 49 میں اپنا موبائل وغیرہ رکھ کر واش روم کے لیے گئیں تو کچہری کے احاطے سے ہی ان کو نامعلوم افراد نے اسلحے کے زور پر اغوا کر لیا، جبکہ رہائی کے بعد 23 اگست کو ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تو وکلاء سمیت کئی شہریوں نے مبینہ واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا، جس کے بعد وزیر اعظم پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل سمیت کئی سرکاری اور نجی اداروں نے واقعے کا نوٹس لیا۔ وکلاء تنظیموں نے ہڑتال کا اعلان کرتے ہوئے احتجاج بھی کیا۔ دیپال پور پولیس نے دفعہ 161 کے تحت ان کا مفصل بیان قلم بند کیا، جس کے مطابق انہوں نے نظر فرید، اویس پراچا، میاں اکمل وٹو اور شاہ نواز وغیرہ کو اپنے مبینہ اغوا کا ملزم قرار دیا ہے۔ بار کے ہی ایک ممبر جن کے ساتھ وہ پچھلے عرصے سے پریکٹس کر رہی تھی کو مقدمے میں نامزد کرنے کے بعد دیپال پور بار، جو کہ پہلے ارشاد نسرین کی بھرپور حمایت کر رہی تھی، اب اس کشمکش میں ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ voiceSpeaker.net سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے صدر دیپال پور بار فخر حیات وٹو نے بتایا کہ انہوں نے پولیس سے فوری طور پر شفاف تفتیش کا مطالبہ کیا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے معزز ممبر جو ہیں ان کو انہوں نے ان کو نامزد کیا ہے اپنی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت بڑی پریشانی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء کمیونٹی میں ایک بڑی ایک ہلچل سی وہ مچ گئی ہے اس پہ، اور مختلف وہ رد عمل وہ سامنے آ رہا ہے، لیکن باوجود سب رد عمل کے، لیکن بینگ ایگزیکٹو اور بینگ وہ پریزیڈنٹ بار دیپال پور، میں ٹوٹلی طور پہ بیلیو کروں گا کہ فیئر انویسٹیگیشن ہو، جو حقائق آئیں گے، جن کا اس میں کوئی معاملہ پایا جائے گا وہ کیفر کردار تک پہنچے گا، لیکن ایک بات کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، نہ اس کے حق میں ہیں، نہ کسی کو کرنے دیں گے، نہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ گار ہوگا تو وہ بچ کے نہیں جائے گا، رول آف لا ہوگا، اگر کوئی بے گناہ ہوگا تو پھر اس کو کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ تو چونکہ یہ ہماری بار کا مسئلہ اب اور سمت وہ طرف جا رہا ہے، ہمارے کلرک ہیں ان کو نامزد کیا انہوں نے، یہاں پہ انہوں نے بھی کوئی کلرکس ایسوسیشن نے بھی آج کوئی ٹیسٹ کیا ہے، تو یہ رد عمل وہ مختلف ظاہری بات ہے چل رہا ہے۔ جوائنٹ سیکرٹری دیپال پور بار عزادار حسین جعفری کا کہنا ہے کہ انہیں پولیس اور دیگر ایجنسیوں کی تفتیش پر مکمل اعتماد ہے۔ یہ واقعہ ہوا ہے جب ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ہماری بار ممبر ہیں، ہماری بہن ہیں، ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے، تو ایک بڑا ہی جو ہمارے جذبات تھے ان کا لیول کچھ اور ہی تھا، تو بڑا دکھ بھی تھا، اور اس میں بار نے ہم نے وہ 3 دن مسلسل اس میں اسٹرائک میں رہے ہیں۔ ان کے مقدمے میں جو ہم نے انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ان کو مکمل جو انہوں نے ہم سے ریکوائر تھی ان کو چیزیں وہ ہم نے ان کو پرووائڈ کی ہیں، ان کے ساتھ ہم نے مکمل تعاون کیا ہے، جو ایجنسیز ہیں وہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہیں، اور وہ جو تفتیش کر رہی ہیں ہمیں یقین ہے کہ وہ آن میرٹ ہو رہی ہے اور اس میں میرٹ ہوگا۔ جبکہ ملزمان میں سے ایک ایڈوکیٹ میاں اکمل وٹو، جو کہ ارشاد نسرین کے مطابق ان کے شوہر بھی ہیں، کا کہنا ہے کہ وہ شامل تفتیش ہو چکے ہیں، مگر نہ وہ ارشاد نسرین کے شوہر ہیں اور نہ ہی ان کے اغوا میں ملوث ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میری اس سے کوئی شادی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 2013 سے میں ادھر سے پریکٹس کر رہا ہوں۔ وہ میرے پاس آئی تو اس نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو مجھے کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں، تو میں نے کہا چلو کلیگ ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اپنے کمرے بٹھا لیا، لیکن اس کی ایکٹیویٹیز مشکوک تھی، کیسز کے لوگوں کے ساتھ لیٹیگیٹر ہوئی، یہ معاملہ سارے
और पिछले साल भी उसने ना एक सेम इसी तरह के एक वक़ुआ जो क्रिएट किया था जैसे अब उन्होंने किया, सेम स्टोरी थी किडनैपिंग की, अपनी उस किडनैपिंग थी, खुद ही विक्टिम थी, खुद ही उसमें मुद्दई थी। तो सारे मामला से मैं एक प्रोफेशनल एडवोकेट था, तो मैंने कहा ये मामला इस तरह से मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैंने उसे अपने चैम्बर से निकाल दिया। मेरी उससे कोई राब्ता कोई तल्लक वास्ता नहीं है, लेकिन वो एक तरह ब्लैक मेलिंग करते थे, कुछ केसेस का उनके मेरे साथ इश्यूज था, मेरे क्लाइंटेशन को डिस्टर्ब करती थी सारे मामले, तो मैंने उससे सख्ती की कैसा अपना क्या करें। इस वकूअ से मेरा कोई तल्लक वास्ता भी नहीं है। मेरे बेटे की एंगेजमेंट थी, जुम्मे वाले दिन सुबह फर्स्ट टाइम अपने बच्चों के साथ मैं पिंड चला गया, मैं वहाँ सोमवार तक रहा हूँ, सारे मामला मैं क्लियर करके जब मैं वापस आया हूँ, अगर मंगलवार दिन इधर कोर्ट आया हूँ, तो फिर इधर से पता चला कि उसकी हो गई है किडनैपिंग वाला सारा इशू चला था। तो लेकिन उसमें मुझे भी कोई, मैंने कहा मुझे क्या होना था, सारी उसकी देखते रहे जो वीडियो वगैरह वायरल हुई उसी तरह हुई थी। मेरे साथ सिर्फ उसकी यही रंजिश है कि ना मेरी उसकी शादी है, ना कोई रिश्ता, ना कुछ है, कुलीक है सभी की, तो मेरी भी कुलीक है। इस चीज़ की वजह से ब्लैक मेलिंग जो है ना उसकी वो सारी है, तो उसने मुझे मुलव्वस किया है। मेन उसको जो रांझे चैम्बर वाला, या मैंने उसकी सपोर्ट नहीं की थी, तो उसका मुकदमा जो साबका उसने किया था ना, वो सारा उसका डिस्टर्ब हो गया, उसकी वो सारी कार्रवाई है वो नामुकम्मल हो सकी, मुलजमान की थी वो इनोसेंट होगी, उनकी बेल कन्फर्म होगी। इस चीज़ को उससे बहुत रांझ था कि मेरे साथ ड्रामे में शामिल नहीं हुआ, तो इस वजह से उन्होंने मुझे मेरे क्लर्क को मुलव्वस किया। और क्लर्क को मुलव्वस करने की वजह जो ये है कि ये मेरे क्लाइंटेशन जो डिस्टर्ब की, साफ ज़ाहिर उसका अपना चैम्बर नहीं था, ये उसके जो भी थी सारे मामले टाइम नहीं दे सकती, जो क्लाइंटेशन तो हमारे साथ रब्ता करते, क्लर्क के साथ उसको ये रांझ था। उन्होंने उससे रब्ता, हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, जितनी इन्फॉर्मेशन जो इंक्वायरी करनी आपने, हम मौजूद हैं। उन्होंने हमसे पूछताछ भी की है, सारे मामला जो डिस्कस थे हमने इंक्वायरी भी की है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा हम हर वक्त राब्ते में जैसे हमें कॉल करें हम चले जाएंगे, हमने अपने आप को उनको पेश कर दिया था। 2007 में सेम इन्होंने सेम इसी तरह के एक वकूआ रिपीट किया था अपने बेटे की किडनैपिंग का। इसका साबका खावंद थे, मैं भी शायद मौजूदा भी हूँ, ज़ाकिर हुसैन, उसकी बीवी, उसके बेटे और दामाद के ख़िलाफ़ सभी के साथ सेम इस तरह की FIR करवाई थी। FIR भी झूठी थी, उसमें वो इनोसेंट भी डिक्लेयर, लेकिन इसने एक एडवोकेट होने का इस तरह का उसमें उनके लिटिगेटर तो बहुत ज़्यादा है, उनसे एक हैवी अमाउंट वसूल की थी। इतना हमारे साथ इशू नहीं था, लेकिन उस चीज़ को देखते मुझे भी क्लियर हो गया कि मुझे क्यों नामजद किया गया है जी। उधर से राली रिक्वेस्ट करेंगे मैं कि लाजमी, अगर मैं गिल्टी हूँ तो मेरे खिलाफ हर सूरत कार्रवाई होनी चाहिए, वो तो होगी पुलिस की तरफ से, इधर प्रोफेशन की तरफ से ही होनी चाहिए। अगर झूठा ये वकूआ नहीं होया वो सारा मामला, तो फिर इनके खिलाफ भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, या जिससे रिटर्न देनी पड़ेगी हर सूरत, फिर इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। साबका सेक्रेटरी दीपालपुर बार अदनान वट्टू ने बताया कि जब अक्टूबर 2019 में इरशाद नसरीन ने अपने मुबैना अगवा के मुकदमे में भी एक बार मेंबर को नामजद किया, मगर अदालत ने उनकी कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी ज़मानत मंजूर कर ली थी। मैडम अरशाद नसरीन ने 2019 में जब मैं बतौर बार सेक्रेटरी था, तो उन्होंने एक अगवा का पर्चा पहले भी करवाया था। उन्होंने उस वक़्त भी एक बार मेंबर पे रखा था, वो अबू बकर वट्टू थे, वो हमारे बार मेंबर थे, उस पर भी उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। और 109 पे एक चेयरमैन बल्दिया थे शुएब कादर साहब, उन पे भी लगा दिया। पहले बार ने, चूँकि हमारी बार मेंबर थी, पूरी बार ने मुत्तहिद होके उस अबडक्शन के ख़िलाफ़ भी हमने मुलजमान की यहाँ से अबूरी ज़मानतें ना होने दी। ये एक तो अखलाकी तौर पे, कानूनी तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन एज़ ए ओहदेदारान हमने अरशाद नसरीन का साथ दिया। लेकिन जब पुलिस ने हक़ायक़ दिए तो वो सारे फेक निकले और मुलजमान की अबूरी ज़मानतें सब कन्फर्म हो गई, और हमें बड़ी वहाँ हमें सुबकी महसूस हुई। अकमल साहब को जब इसका वकूआ हुआ था, जब मुदई बनी, अकमल साहब के पास मैं भी गया कि आप इसका पैरवी क्यों नहीं कर रहे, वो बेचारी चीख रही है। अकमल साहब कहते थे कि मेरी कुलीक है, लेकिन कभी वो नहीं कहता था कि मेरी बीवी है। मैडम हमें ज़रूर कहती थी कि मेरा खामद है, और जब उससे पूछते थे वो कहता था मेरी ऐसी कोई नहीं है नहीं। तो डाइवोर्स कैसे पूछें, कहाँ से हुई? वो कभी उसने बार के सामने, कभी वकला के सामने, कभी किसी प्लेटफॉर्म पे उसने उसे बीवी अडॉप्ट ही नहीं किया। एडवोकेट इरशाद नसरीन ने voicepk.net को बताया कि उनके मुलजिमान इलाके के बहुत ही बाअसर लोग हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मुकामी पुलिस की कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार न करते हुए IG पंजाब से खुद इस वाक़ये की तहकीकात का मुतालबा किया है। 1.5 साल से मेरे साथ जुल्म की अखीर हो रही है, लेकिन किसी ने कहीं भी कोई रिलीफ नहीं दिया।
मुझे एडवोकेट होने की सज़ा दी गई है, मुझे औरत होने की सज़ा दी गई है, मुझे एक ईमानदार वकालत ईमानदारी से करने की सज़ा दी गई है। जिन मुलजमान को मैंने नामज़द किया है वो एक लैंड माफिया है। उनके जो लिंक्स हैं वो पाकपतन, बहावल नगर और उकाड़ा के क्रिमिनल लोगों से हैं, जो डकैतियों में मुलव्वस हैं, चोरी रॉबरी में मुलव्वस हैं, तंजीम के लोगों से उनसे राब्ते हैं उनके। इन सारी चीज़ों के जो सबूत हैं वो मेरे पास मौजूद हैं और मैं यहाँ पे ख़ुद को गैर महफूज महसूस कर रही हूँ, गैर सिक्योर महसूस कर रही हूँ। मुझे सिक्योरिटी की अशद ज़रूरत है, मेरी जान को शदीद ख़तरा है। यहाँ पे जितने महकमे हैं वो उनके ज़ेरे असर हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो दूर, डिवीज़न लेवल पे भी वो असरअंदाज हैं। तो मैं चाह रही हूँ मेरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो आईजी साहब अपने ऑफिस में अपनी निगरानी में करें और मुझे जो भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो उसमें जानी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो प्रोवाइड किया जाए। जो सदर बार दीपालपुर हैं वो जो मुलजमान मैंने शाहनवाज़ और नज़र फरीद नॉमिनेट किए हैं वो यहाँ के मकामी MPA नूरुल अमीन नासर वट्टू के सगे मामूज़ाद हैं। जो सदर बार हैं MPA साहब की जो हमशीरा हैं वो उनकी भाभी हैं। जो सेक्रेटरी बार हैं जो मैंने मुलज़म नामज़द किया है अवैस पिराचा, उसके करीबी अजीज़ हैं। तो जब कैबिनेट के ही लोग इसमें है तो मेरे साथ यकजहती कौन करेगा। मेरी दादी अम्मा ने एक खानका के लिए रकबा 5 एकड़ का वक़्फ़ किया था। मेरे दादा अबू मतवली मुकर्रर किए गए थे। जो मेन जहाँ से ये निज़ाम शुरू हुआ है उस पे माने का फैमिली है, ग़ुलाम मोहम्मद माने का, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। इनके ज़हन में था कि मैं एडवोकेट बनी हूँ उस खानका के रकबे को वापस लेने के लिए। वो आ गए। आज उस प्रॉपर्टी की कीमत खरबों में है, अरबों में नहीं खरबों में है। कमर्शियल है, एक एक दुकान करोड़ रुपए की है। उसके बाद मैंने उस नज़र फरीद ने, इन्होंने उस वक़्त इससे भी बड़ा प्रोपेगेंडा किया, मेरे से दुकान परचेज़ की, 70 लाख का चेक दिया। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। उसके बाद एक खातून है ज़िक्रा बीबी, जिनकी मैं कौंसल हूँ। वो बेऔलाद है, एजिड खातून है, गैर शादीशुदा है। उसको वरासत में बाप जो है वो कुछ रकबा दे गया जो भी आजकल कमर्शियल है। उसको स्नैच करने के लिए, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि लैंड माफिया है, उसकी प्रॉपर्टी भी अरबों में है। मुझे ब्लैकमेल किया गया, मुझे पैसों की ऑफ़र की गई, मुझे थ्रेट्स दी गई। कभी मेरे बच्चों पे हमला करवाया गया, कभी कैसे, और ताकि मैं उस औरत का अंगूठा कोर्ट में जालसाजी से इनको लगवा दूँ। मैंने रिफ्यूज़ किया, मैंने उनके पैसों को रिफ्यूज़ किया, मैंने उनकी थ्रेट्स को खुले दिल से कबूल किया। मेरे साथ पहले भी एक वाक़या हुआ। मेरी 14 साल की प्रैक्टिस है और मुझे मेरी बार ने मुजाहिदा बार का खिताब दिया हुआ है। मैंने वकला तहरीक में बहुत सर्विसेज दी हुई हैं और उन सर्विसेज के मैं समझती हूँ एजाज़ में अल्लाह पाक ने मुझे 4 दिन बाद जब चीफ बहाल हुए मुझे बेटे की नेमत से नवाजा। मैंने उसी कंडीशन में चुंगी अमर सद्दू से लेके हाई कोर्ट तक पैदल मार्च किया अपने भाइयों के साथ। अगर किसी के पास वो फुटेज, वो वीडियोस वो अगर हैं तो आप मुझे वहाँ पे वाज़े देखेंगे। मैंने कभी खुद को खातून नहीं समझा, मैंने एडवोकेट समझा है। SHO थाना सिटी दीपालपुर कल्बे सजाद का कहना है कि उनको फिल वक्त वाक़े पर मीडिया से गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं लगता क्योंकि अभी तक तहकीकात जारी हैं, मगर उन पर किसी भी किस्म का दबाव नहीं और वो मेरिट पर ही कार्रवाई करेंगे। पंजाब बार काउंसिल ने वाक़े पर 6 वकला पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें सदर दीपालपुर बार फ़खर हयात वट्टू, सेक्रेटरी शेख ज़ियाउर रहमान, साबका सदर सैयद अल्ताफ़ हुसैन बुखारी, पंजाब बार काउंसिल के साबका मेंबरान चौधरी मोहम्मद रियाज, मियाँ शरीफ ज़फ़र जोया और इरशाद नसरीन के अपने वकील मियाँ असलम शाह जोया भी शामिल हैं। हैरान कुन बात यह है कि इस कमेटी में एक भी खातून रुकन शामिल नहीं, जबकि दीपालपुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की डॉक्टर लसानिया आसिफ ने
ان کی ہسپتال آمد پر ان کا طبی معائنہ کیا، مگر ابھی تک اس کا حتمی نتیجہ سامنے آنا باقی ہے۔ سالوں اسی کچہری میں اپنی وکالت کرنے والی ایڈوکیٹ ارشاد نسرین آج اسی کچہری میں اپنا بیان ریکارڈ کروانے آئی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان بار کونسل اور ملک کے وزیر اعظم جو اس واقعے کا نوٹس لے چکے ہیں وہ صدمے کی حالت میں ملنے والی ایڈوکیٹ ارشاد نسرین کو انصاف دلا پاتے ہیں یا نہیں۔ کیمرہ مین جازیب کے ساتھ حیدر کلیم، وائس PK.net، دیپال پور۔